میرا اسسٹنٹ مارک ڈیمرے وہاں کام کر رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ جلد ہی وہ کوئی مثبت رپورٹ دے گا۔ آسکر نے جواب دیتے ہوئے کہا، کیا آپ ابھی ڈیمرے سے اس بارے میں تازہ ترین رپورٹ لے سکتے ہیں؟ چیف سیکریٹری نے کہا، یس سر، ٹرانسمیٹر رپورٹ لی جا سکتی ہے۔ آسکر نے جواب دیا تو چیف سیکریٹری نے اسبات میں سر ہلا دیا اور پھر میز کے کنارے پر لگا ہوا ایک بٹن پریس کر دیا۔ دوسرے لمحے دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہو کر چیف سیکریٹری کے قریب آ کر سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ لانگ رینج ٹرانسمیٹر لے آؤ، چیف سیکریٹری نے اسی طرح چیختے ہوئے لہجے میں کہا۔ یس سر، نوجوان نے انتہائی موتبانہ لہجے میں جواب دیا اور واپس مڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک جدید ساخت کا لانگ رینج ٹرانسمیٹر موجود تھا۔ اس نے ٹرانسمیٹر چیف سیکریٹری کے سامنے رکھا اور اس کے اشارے پر سر جھکائے ہوئے واپس چلا گیا۔ لیجئے، چیف سیکریٹری نے ٹرانسمیٹر اٹھا کر آسکر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تو آسکر نے اٹھ کر ٹرانسمیٹر ان سے لیا اور اپنے سامنے رکھ کر دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے اس پر فریکوینسی ایڈجسٹ کرنی شروع کر دی اور پھر اسے آن کر دیا۔ ہیلو چیف آف ڈارک لائٹ، کالنگ اوور، آسکر نے بدلے ہوئے لہجے میں بار بار کال دیتے ہوئے کہا۔ یس سر، مارک ڈیمرے بول رہا ہوں سر، اوور۔ چند لمحوں بعد ایک موتبانہ آواز سنائی دی۔ مشن کی تازہ ترین رپورٹ کیا ہے؟ اوور، آسکر نے اسی طرح بدلے ہوئے لہجے میں کہا۔ سر، ہم کامیابی کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ توصیف تک یہ بات پہنچائی جا چکی ہے اور توصیف نے اس بارے میں عمران سے فون پر بات بھی کی ہے۔ ہم نے وہ بات چیت ٹیپ کر لی ہے جو کافی حوصلہ افزا ہے۔ اس عمران نے اسے مزید انکوائری کے لیے کہا ہے۔ اب ہم توصیف تک یہ بات پہنچا رہے ہیں کہ یہ لیبارٹری واقعی پاکیزہ کے خلاف کام کرے گی۔ اس لیے مجھے یقین ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایک ہفتے کے اندر پاکیزہ سیکرٹ سروس کی ٹیم اس لیبارٹری کے خلاف کام کرنے کے لیے اپ لینڈ پہنچ جائے گی۔ چونکہ وہ لازماً توصیف سے رابطہ قائم کریں گے، اس لیے توصیف کی مکمل نگرانی کی جا رہی ہے۔ جیسے ہی یہ ٹیم اپ لینڈ پہنچی ہمیں اطلاع مل جائے گی۔ اس کے بعد ہم اپنے مشن پر فوراً کام شروع کر دیں گے۔ اوور، مارک ڈیمرے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، اوور اینڈ آل، آسکر نے کہا اور ٹرانسمیٹر کو آف کر دیا۔ یہ ہے جناب تازہ ترین پوزیشن، آسکر نے کہا۔ آپ فرمائیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ چیف سیکریٹری نے ہوم سیکریٹری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جناب، یہ سلسلہ مجھے کافی طویل لگتا ہے اور ضروری نہیں کہ وہ سروس واقعی اپ لینڈ جائے، جبکہ ہمارا انتہائی اہم پروجیکٹ رکا ہوا ہے اور اس میں زیادہ دیر نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں جلد از جلد سائنسدان یا اس کا ریسرچ پیپر چاہیے، ہوم سیکریٹری نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر ایسا ہے کہ ڈارک لائٹ سے یہ مشن واپس لے کر کسی اور کو دے دیا جائے۔ آپ کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے مسٹر آسکر؟ چیف سیکریٹری نے کہا۔ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے جناب، میرا تو کام حکم کی تعمیل ہے، لیکن ڈارک لائٹ اپنے انداز میں کام کرنا جانتی ہے، آسکر نے کہا۔ آپ کے ذہن میں دوسری کون سی تنظیم ہے جو اس مشن کو آپ کی مرضی کے مطابق تیزی سے مکمل کر سکے؟ چیف سیکریٹری نے کہا۔ میری کنگ سے بات ہوئی ہے، اس کا کہنا ہے کہ وہ یہ مشن ایک ہفتے کے اندر گارنٹی کے ساتھ مکمل کر سکتے ہیں، ہوم سیکریٹری نے کہا تو چیف سیکریٹری نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے میز کے کنارے پر لگا ہوا بٹن ایک بار پھر پریس کر دیا۔ دوسرے لمحے دروازہ کھلا، وہیں نوجوان اندر داخل ہوا۔ یس سر، نوجوان نے قریب آ کر موتبانہ لہجے میں کہا۔ سیکریٹری سے کہو کہ کنگ کو کال کرے اور اسے فوراً یہاں میٹنگ میں پہنچنے کے لیے کہے، چیف سیکریٹری نے کہا۔ یس سر، نوجوان نے کہا اور تیزی سے واپس مڑ گیا۔ آپ کے پاس اسپیشل مشن کی فائل تو ہوگی؟ چیف سیکریٹری نے ہوم سیکریٹری سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس سر، ہوم سیکریٹری نے کہا اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک طے شدہ فائل نکالی اور اسے چیف سیکریٹری کی طرف بڑھا دیا۔ رکھیں، اسے کنگ آئے گا تو اس سے ہی بات ہوگی، چیف سیکریٹری نے کہا تو ہوم سیکریٹری نے فائل اپنے سامنے رکھ لی۔ پھر تقریباً نصف گھنٹہ خاموشی سے ہی گزر گیا۔ نصف گھنٹے بعد دروازہ کھلا اور ایک دیو قامت لہیم شہیم آدمی اندر داخل ہوا۔ اس کے جسم پر 3 پیس سوٹ تھا، لیکن وہ اپنے قد و قامت سے واقعی کوئی دیو نظر آ رہا تھا۔ یس سر، آپ نے مجھے ایمرجنسی کال دی تھی، اس لہیم شہیم آدمی نے قریب آ کر کہا۔ تشریف رکھے کنگ، چیف سیکریٹری نے کہا تو کنگ آسکر کے ساتھ ہی کرسی پر بیٹھ گیا۔ آپ سے ہوم سیکریٹری صاحب نے پاکیزہ میں اسپیشل مشن کے بارے میں بات کی ہے، چیف سیکریٹری نے کہا۔ یس سر سوری طور پر بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا تھا کہ وہاں سے کسی سائنسدان کو اس کے ریسرچ پیپر سمیت اغوا کر کے یہاں لے آنا ہے۔ میں نے انہیں کہا تھا کہ یہ مشن کنگ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ کنگ نے جواب دیا، آپ انہیں فائل دیں تاکہ یہ تفصیل سے اس مشن کے بارے میں جان سکیں۔ چیف سیکریٹری نے ہوم سیکریٹری سے کہا تو ہوم سیکریٹری نے فائل اٹھا کر کنگ کی طرف بڑھا دی۔ کنگ نے کرسی سے اٹھ کر ہوم سیکریٹری سے فائل لی اور پھر اسے کھول کر اس کے اندر موجود کاغذات پڑھنے شروع کر دیے۔ باقی سب لوگ خاموش بیٹھے رہے جبکہ کنگ نے فائل پڑھ کر بند کر دی۔
आप बताएं कि अगर आपको ये मिशन दिया जाए तो आप उसे मुकम्मल करने में कितना वक्त लगाएंगे। चीफ सेक्रेटरी ने कहा, जनाब ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता। किंग ने बड़े एतमाद भरे लहजे में जवाब देते हुए कहा, एक साइंसदान को अगवा करने के लिए क्या ये वक्त नहीं है। चीफ सेक्रेटरी ने कहा, जनाब इसमें सिर्फ साइंसदान का रिहायशी पता और उसका हुलिया बताया गया है। इस किस्म की दूसरी तफसील दर्ज है जो कि हो सकता है कि अब वो इस पते पर ना रहता हो या किसी लेबॉर्ट्री में शिफ्ट हो गया हो। इसकी तलाश के लिए तो बहरहाल वक्त चाहिए। अगर वहीं रहता हुआ तो फिर तो ये काम चंद घंटों में भी हो सकता है। मैंने तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता मांगा है। किंग ने कहा, यह केस पहले हुकूमत ने डार्क लाइट के हवाले किया हुआ है, लेकिन डार्क लाइट के चीफ मिस्टर ऑस्कर बहुत तवील और पेचीदा प्लानिंग के तहत इस पर काम कर रहे हैं, जबकि हुकूमत को प्रोजेक्ट इस साइंसदान या इसके रिसर्च पेपर के बगैर रुका हुआ है और हुकूमत को इस सिलसिले में रोज़ाना भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि यह मिशन कम वक्त में मुकम्मल हो जाए। लेकिन मिस्टर ऑस्कर का कहना है कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस इंतहाई ताकतवर सर्विस है और वो ये मिशन मुकम्मल नहीं होने देगी। इसका क्या ख्याल है। चीफ सेक्रेटरी ने कहा, जनाब जहाँ तक मुझे इल्म है पाकिस्तान एक पसमानदा और छोटा सा मुल्क है, इसलिए इसकी सीक्रेट सर्विस ने क्या ताकतवर होना है। अगर हो भी सही तो हमारे मिशन का इससे क्या ताल्लुक। सीक्रेट सर्विस अब साइंसदानों की हिफाजत पर तो मामूर नहीं हुआ करती। किंग ने जवाब देते हुए कहा, मिस्टर ऑस्कर आप इस सिलसिले में कुछ कहना पसंद करेंगे। चीफ सेक्रेटरी ने कहा, मैं एक्रीमिया की एजेंसियों में काम कर चुका हूं, जबकि मिस्टर किंग को अभी तजर्बा नहीं है, इसलिए उन्हें मालूम ही नहीं कि वो लोग किस कदर तेज और फ़ाल हैं। मैं इस मिशन को इस अंदाज में मुकम्मल करना चाहता था कि ये हमेशा के लिए महफूज हो जाए, लेकिन अगर हुकूमत इस मिशन को मुझसे लेकर मिस्टर किंग को देना चाहती है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। ऑस्कर ने जवाब देते हुए कहा, अगर वो ताकतवर और फ़ाल है भी सही तो हमने भी तो चूड़ियाँ नहीं पहन रखी, हम इनसे मुकाबला भी कर सकते हैं। किंग ने जवाब दिया, मिस्टर किंग मैं मज़ीद कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन हुकूमत स्टालिया के मुफाद में सिर्फ इतना कहना ज़रूरी समझता हूँ कि आप ये मिशन इस अंदाज में मुकम्मल करें कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को इसका इल्म ना हो सके, वरना अगर आप इस साइंसदान या उसका रिसर्च पेपर ले भी आए तो पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस उसे वापस लेने के लिए यहाँ भी आ सकती है और यहाँ आने के बाद उसने वो सारा प्रोजेक्ट ही तबाह कर देना है जिसकी खातिर ये मिशन मुकम्मल किया जा रहा है। ऑस्कर ने कहा, आप फिक्र ना करें मिस्टर ऑस्कर, किंग ग्रुप हर काम में सोच समझ कर करता है और अगर वो लोग यहाँ आए तो यहाँ भी किंग ग्रुप उनसे मुकाबला कर सकता है। किंग ने बड़े फाखराना लहजे में कहा, ओके मिस्टर ऑस्कर आप इस मिशन से हाथ उठा लें, अब ये मिशन किंग ग्रुप मुकम्मल करेगा और मिस्टर किंग मुझे 1 हफ्ते के अंदर साइंसदान या उसका रिसर्च पेपर या दोनों यहाँ चाहिए। चीफ सेक्रेटरी ने कहा, यस सर। किंग ने मुसरत भरे लहजे में कहा, ओके आप ये फाइल ले लें और फौरी तौर पर काम शुरू कर दें। मीटिंग बर्खास्त। चीफ सेक्रेटरी ने कहा और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसके उठते ही होम सेक्रेटरी जॉनसन, ऑस्कर और किंग तीनों खड़े हो गए। फिर चीफ सेक्रेटरी के पीछे होम सेक्रेटरी दरवाजे की तरफ बढ़ गया, उसके पीछे किंग और सबसे आखिर में ऑस्कर दरवाजे की तरफ बढ़ा। थोड़ी देर बाद ऑस्कर स्याहकार में बैठा वापस अपने ऑफिस की तरफ रवाना हो गया। ऑफिस में पहुंचते ही उसने अलमारी में से लॉन्ग रेंज ट्रांसमीटर निकाला और उसे मेज पर रखकर वो कुर्सी पर बैठ गया। उसने ट्रांसमीटर पर फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करनी शुरू कर दी। फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करके उसने ट्रांसमीटर का बटन ऑन कर दिया। हेलो चीफ ऑफ डार्क लाइट कॉलिंग ओवर। ऑस्कर ने बदले हुए लहजे में बार बार कॉल देते हुए कहा, यस डैमरे अटेंडिंग यू ओवर। थोड़ी देर बाद उसके असिस्टेंट मार्क डैमरे की आवाज़ सुनाई थी। डैमरे स्पेशल मिशन डार्क लाइट से वापस ले लिया गया है, इसलिए तुम अपने ग्रुप समेत फौरी तौर पर वापस आ जाओ ओवर। ऑस्कर ने कहा, वो क्यों बॉस, अब तो हम कामयाबी के करीब पहुंचने वाले हैं ओवर। मार्क डैमरे के लहजे में बेपनाह हैरत थी। उनका कहना है कि हमारा प्लान बेहद तवील है और उन्हें बेहद जल्द ही है, इसलिए अब यह मिशन हमसे लेकर किंग ग्रुप के हवाले कर दिया गया है, जिसने 1 हफ्ते में मुकम्मल करने का वादा कर लिया है ओवर। ऑस्कर ने कहा, लेकिन बॉस किंग ग्रुप पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का मुकाबला कैसे करेगी? अगर पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के कानों में किंग ग्रुप के इस मिशन की मामूली सी भी भनक लग गई तो किंग ग्रुप के लिए मिशन को मुकम्मल करना एक तरफ अपनी जानें बचाकर वापस आना ही मुश्किल हो जाएगा ओवर। मार्क डैमरे ने कहा, किंग ग्रुप को अभी पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के बारे में कुछ मालूम नहीं, इसलिए जो वो करते हैं उन्हें करने दो। तुम अपने ग्रुप समेत फौरन वापस आ जाओ ओवर एंड ऑल। ऑस्कर ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। काश किस तरह इस किंग का टकराव इमरान से हो जाए और फिर लुत्फ आएगा।
फिर उसे पता चलेगा कि कैसे मिशन मुकम्मल होते हैं। ऑस्कर ने होंठ चबाते हुए कहा और फिर अचानक उसने कांधे झटके और रिसीवर उठाकर उसने फोन के नीचे लगे हुए बटन को प्रेस किया और तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। स्टोन क्लब। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से एक नुस्वानी आवाज सुनाई दी। साइमन से बात कराओ, मैं ऑस्कर बोल रहा हूँ। ऑस्कर ने तहमकाना लहजे में कहा, यस सर, होल्ड करें। दूसरी तरफ से कहा किया, हेलो, साइमन बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक भारी सी आवाज सुनाई दी। ऑस्कर बोल रहा हूँ साइमन, क्या तुम मेरे ऑफिस आ सकते हो अभी? ऑस्कर ने कहा, अभी? क्यों, खैरियत? साइमन ने चौंक कर पूछा। इंतहाई ज़रूरी काम है, आ जाओ जल्दी। ऑस्कर ने कहा, ओके, आ रहा हूँ। दूसरी तरफ से कहा गया तो ऑस्कर ने शुक्रिया कहकर रिसीवर रख दिया। फिर उसने करीब पड़े हुए इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस कर दिए। यस सर, एक मर्दाना आवाज़ सुनाई थी। रॉबर्ट स्टोन क्लब का साइमन आ रहा है, उसे फौरन मेरे ऑफिस पहुंचा देना। ऑस्कर ने कहा, यस बॉस। दूसरी तरफ से कहा किया और ऑस्कर ने रिसीवर रखा और फिर उठकर उसने एक तरफ मौजूद रैक में शराब की बोतलें और जाम मौजूद थी, वो बोतलें उठाकर मेज पर रखी और साथ ही एक जाम भी उठा लिया। फिर उसने कुर्सी पर बैठकर एक बोतल खोली और आधा जाम भरकर उसने चुस्कियां लेनी शुरू कर दी। तकरीबन निस्फ घंटे बाद ऑफिस का दरवाजा खुला और एक अधीर उम्र आदमी जो शक्ल सूरत और अंदाज से कोई कारोबारी आदमी दिखाई दे रहा था अंदर दाखिल हुआ। ओ, ऐश हो रहे हैं? अंदर आने वाले ने मुस्कुराते हुए कहा। आओ बैठो साइमन, तुम्हारे लिए मैंने अलहदा बोतल पहले ही रख दी है। ऑस्कर ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह शुक्रिया, साइमन ने कहा और मेज की दूसरी तरफ कुर्सी पर बैठकर उसने बोतल उठाई, उसे खोला और फिर वैसे ही उसे मुंह से लगा दिया। एक लंबा घूंट लेने के बाद उसने बोतल वापस मेज पर रख दी। हाँ, अब बताओ क्या बात है? इस कदर इमरजेंसी में कॉल क्यों किया है? साइमन ने कहा, किंग ग्रुप ने मुझसे एक मिशन छीन लिया है और मैं चाहता हूं कि किंग ग्रुप इस मिशन में नाकाम रहे। ऑस्कर ने आगे की तरफ झुकते हुए सरगोशी के अंदाज में कहा तो साइमन बेइख्तियार चौंक पड़ा। लेकिन इस सिलसिले में क्या कर सकता हूं मैं? साइमन के लहजे में हैरत थी। पाकिशिया का अली इमरान तुम्हारा दोस्त है, तुमने खुद मुझे बताया था। ऑस्कर ने कहा, था जब मैं भी एक्रीमिया में रहता था, लेकिन अब तो तवील अरसा हो गया है कि उससे कभी मुलाकात तो एक तरफ बात भी नहीं हुई। लेकिन तुम चाहते क्या हो? खुलकर बात करो। साइमन ने बोतल में से एक और बड़ा घूंट लेते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि किसी तरह इमरान के कानों तक ये बात पहुंच जाए, लेकिन शर्त ये कि किसी को ये इल्म ना हो सके कि ये बात हमारी तरफ से उसे पहुंचाई गई है, वरना हम सरकारी एहताब में आ जाएंगे। ऑस्कर ने कहा, देखो ऑस्कर, तुम मेरे बेहतरीन दोस्त हो और किंग के साथ मेरे ऐसे ताल्लुकात नहीं हैं, सिर्फ सलाम दुआ है। अगर केस तुमसे लेकर किंग को दिया गया है और किंग को वहां पहुंचते ही ये एहसास हो गया है कि उसके मिशन के बारे में किसी को पहले से मालूम है, तो लामहला हमारी बात तुम पर आ जाएगी। बाकी रहा वो इमरान, तो वो खुद ही किंग से निपट लेगा, तुम उसकी फिक्र मत करो। साइमन ने कहा, लेकिन अगर उसे मालूम ही ना हो सका तब? ऑस्कर ने कहा, उसका एक हल है कि इमरान तक किंग का नाम ना पहुंचे, सिर्फ इतनी बात बता दी जाए कि ये मिशन उसके खिलाफ होने वाला है और उससे ये भी मालूम ना हो सके कि उसे किसने बताया है, फिर बात हो सकती है। तुम पहले ये बताओ कि किंग का वहाँ मिशन क्या है? साइमन ने कहा, एक साइंसदान को अगवा करना है। ऑस्कर ने जवाब दिया। क्या नाम है इस साइंसदान का? साइमन ने पूछा। डॉक्टर यूनस उसका नाम है और पता ग्रीन टाउन कोठी नंबर 101 ए ब्लॉक। ऑस्कर ने तफसील बताते हुए कहा, यहाँ से फ़ोन डायरेक्ट हो सकता है? साइमन ने कहा, हाँ, लेकिन तुम क्या करना चाहते हो पहले मुझे बताओ, ये इंतहाई संजीदा मसला है। ऑस्कर ने कहा, मैं समझता हूँ, तुम फिक्र मत करो, तुम्हें एक्रीमिया की एक पेशावर कातलों की तंजीम मास्टर किलर्स के बारे में तो याद होगा। साइमन ने कहा, हाँ याद है, क्यों इसका यहाँ क्या जिक्र किया गया? ऑस्कर ने हैरान होकर पूछा। वो तंजीम ख़त्म हो गई थी, मेरा ख्याल था कि उस तंजीम के तमाम इरकान ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन कुछ अरसा पहले क्रीमिया पहुँचा तो वहाँ एक होटल में इत्फाक से इस तंजीम का एक रुकन जवाना मुझसे टकरा गया। मैं भी इस दौर में उसे जानता था और भी चनाचा इतना तवील अरसे बाद मिलकर हम दोनों बेहद खुश हुए। उसने मुझे बताया कि वो अब मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान शिफ्ट हो गया है और वहाँ अली इमरान के साथ काम करता है। मैंने उससे बताया कि इमरान मेरा भी दोस्त है, तो वो और भी खुश हुआ। उसने मुझे पाकिस्तान आने की दावत दी और साथ ही पता बताया कि दारुल हुकूमत के रॉबर्ट रोड पर एक इमारत है, राना हाउस, वो वहीं रहता है। इस वक्त तो उसने मुझे इसका फ़ोन नंबर भी बताया था, लेकिन अब मुझे वो याद नहीं। अलबत्ता इंक्वायरी से मालूम हो सकता है। इस जवाना को इस बारे में इशारा किया जा सकता है, वो खुद ही इमरान को बता देगा और हमारा काम हो जाएगा। साइमन ने कहा, ठीक है, करो बात।
ऑस्कर ने इस्बात में सर हिलाते हुए कहा और उसके साथ ही उसने फ़ोन के निचले हिस्से में लगा हुआ बटन प्रेस करने के बाद उसने फ़ोन पर मौजूद लाउडर का बटन दबाया और फिर फ़ोन का रुख साइमन की तरफ मोड़ दिया। साइमन ने रिसीवर उठाया और इंक्वायरी के नंबर डायल करने शुरू कर दिए। इंक्वायरी प्लीज़। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से एक नुस्वानी आवाज़ सुनाई दी। एशिया का मुल्क है पाकिस्तान, उसका राब्ता नंबर और उसके दारुल हुकूमत का राब्ता नंबर और वहाँ की इंक्वायरी का नंबर मिल सके तो वो भी चाहिए। साइमन ने कहा, होल्ड ऑन करें, मैं कंप्यूटर से चेक करके बताती हूँ। दूसरी तरफ से जवाब दिया गया और फिर थोड़ी देर बाद उसने तीनों नंबर बता दिए। साइमन ने शुक्रिया अदा करके कॉरिडोर दबाया और इंक्वायरी ऑपरेटर के बताए हुए नंबर डायल करने शुरू कर दिए। इंक्वायरी प्लीज़। राब्ता कायम होते ही एक नुस्वानी आवाज़ सुनाई दी। रॉबर्ट रोड पर राना हाउस का नंबर चाहिए। साइमन ने कहा तो दूसरी तरफ से नंबर बता दिया गया। साइमन ने कॉरिडोर दबाया और एक बार फिर नंबर डायल करने शुरू कर दिए। राना हाउस। राब्ता कायम होते ही एक सख्त सी आवाज़ सुनाई दी, जवाना साहब से बात कराएं, मैं ऑस्ट्रेलिया से उसका दोस्त साइमन बोल रहा हूँ, उन्होंने मुझे ये नंबर दिया था। साइमन ने कहा, होल्ड ऑन करें। दूसरी तरफ से कहा गया, हेलो, जवाना बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद जवाना की मखसूस आवाज़ सुनाई थी। हेलो, मैं साइमन बोल रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया से, याद है क्रीमिया के होटल दायसराय में मुलाकात हुई थी। साइमन ने कहा, हाँ अच्छी तरह याद है, कैसे आज फ़ोन किया? जवाना ने कहा, आज एक होटल में इत्फाक से मेरे कानों में एक बात पड़ी है। क्योंकि इमरान भी मेरा दोस्त रहा है लेकिन उसका राब्ता नंबर मेरे पास नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हें फ़ोन किया। यहाँ का कोई मुजरिम ग्रुप पाकिस्तान के किसी साइंसदान डॉक्टर यूनुस को अगवा करने के सिलसिले में बातें कर रहा था। ग्रीन टाउन का भी जिक्र आया, मैंने सोचा कि पुरानी दोस्ती के नाते इत्तला कर दूँ। साइमन ने कहा, बेहद शुक्रिया, लेकिन ये कौन लोग हैं, क्या तुम उन्हें नहीं जानते? जवाना ने कहा, नहीं, सिर्फ शक्लों से मुझे एहसास हुआ है कि ये लोग ज़ेरे ज़मीन दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं। ये तो तुम्हें मैंने बताया था कि ऑस्ट्रेलिया आने के बाद मैंने ज़ेरे ज़मीन दुनिया से हर किस्म का ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया, इसलिए मैं उन्हें ज़ाती तौर पर नहीं जानता। साइमन ने कहा, वहाँ ऑस्ट्रेलिया में तुम्हारा स्टोन क्लब है ना, यही नाम बताया था तुमने? जवाना ने कहा, हाँ स्टोन क्लब। साइमन ने जवाब दिया, ओके, इस इत्तला का बेहद शुक्रिया। और कुछ? जवाना ने कहा, नहीं, बस सिर्फ इतनी ही इत्तला देनी थी, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, मेरा नाम किसी भी सतह पर सामने ना आए, क्योंकि मैं ज़ेरे ज़मीन दुनिया से अपना ताल्लुक़ ख़त्म कर चुका हूँ। मैं अब इस चक्कर में नहीं फंसना चाहता। साइमन ने कहा, तुम फिक्र ना करो, तुम्हारा नाम सामने नहीं आएगा। जवाना ने जवाब दिया, ओके, गुड बाय। साइमन ने कहा और रिसीवर रख दिया। लो, अब तो खुश हो, अब मैं देखूंगा कि किंग वहां जाकर क्या तीर मारता है। साइमन ने कहा, उसके साथ ही बोतल उठाकर उसने अपने मुंह से लगाई और घटाघट शराब पीता चला गया। बोतल उस वक्त तक उसने मुंह से ना हटाई जब तक बोतल के अंदर मौजूद शराब का आखिरी कतरा भी उसके हलक से नीचे ना उतर गया। ओके, अब मुझे इजाज़त। साइमन ने खाली बोतल मेज़ पर रखकर उठते हुए कहा तो ऑस्कर भी उठ खड़ा हुआ। बेहद शुक्रिया, तुमने वाकई ही इंतहाई महारत से बात की है, लेकिन हो सकता है कि वो इमरान तुमसे स्टोन क्लब के फ़ोन पर खुद बात करे, तो तुमने ना ही किंग का नाम लेना है और ना मेरा, इस बात का ख्याल रखना। ऑस्कर ने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं अहमक तो नहीं हूँ, मैंने भी यहाँ रहना है और मुझे मालूम है कि अगर किंग या हुकूमत तक ये बात पहुँच गई तो मुझे गद्दारी के इल्ज़ाम में ही गोली मार दी जाएगी। साइमन ने कहा तो ऑस्कर ने इस बात में सर हिला दिया। फिर साइमन ऑस्कर से मुसाफिया करके मुड़ा और तेज़ तेज़ कदम उठाता बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया, जबकि ऑस्कर वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया। अब उसके चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट तैर रही थी। अब देखूंगा कि किंग किस तरह ये मिशन मुकम्मल करता है, ऑस्कर ने बड़बड़ाते हुए कहा और फिर मेज़ के दराज खोलकर उसने उसमें से फाइल निकाली और उसे खोलकर सामने रख लिया। इमरान जैसे ही दानिश मंजिल के ऑपरेशन रूम में दाखिल हुआ, ब्लैक ज़ीरो एहतरामन उठ खड़ा हुआ। आज अच्छी सी चाय पिलवाओ। सुलेमान के हाथ की बनी हुई थर्ड क्लास चाय पी पी कर चाय का जायका ही भूलता जा रहा हूँ, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और कुर्सी पर बैठ गया। सुलेमान तो मुझसे भी अच्छी चाय बनाता है, मैंने एक दो बार उसके हाथ की बनी हुई चाय पी है। ब्लैक ज़ीरो ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने वो चाय पी होगी जो वो अपने लिए बनाता है, कभी वो चाय पी लो देखो जो मेरे लिए बनाता है, फिर तुम्हें अंदाज़ा होगा कि गर्म पानी और चाय में क्या फ़र्क होता है। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और ब्लैक ज़ीरो भी हंसता हुआ किचन की तरफ बढ़ गया। इमरान ने फ़ोन अपनी तरफ खिसकाया और फिर रिसीवर उठाकर उसने नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस, राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से सरतावर की आवाज़ सुनाई दी, खाने खाना, जाने जाना, अली इमरान MSc DSc ऑक्सन बोल रहा हूँ। इमरान ने कहा, एक और काफिया भी है जो तुम भूल गए हो।
सरदार भी ईमाना, वो भी कह देना था। दूसरी तरफ से सरदावर ने हंसते हुए कहा, सरदावर और सरदार में सिर्फ एक वाव का ही फर्क है, इसलिए अब मैं क्या कह सकता हूँ। अब बहरहाल बुजुर्ग हैं, इसलिए सरदार भी हैं। इमरान भला कहाँ चूकने वाला था, और सरदावर भी इख्तियार कहका मारकर हंस पड़े। तुमसे बातों में जीतना नामुमकिन है। बहरहाल तुम्हारी काल से ये फ़ायदा होता है कि मैं ज़हनी तौर पर फ्रेश हो जाता हूँ, सरदावर ने हंसते हुए कहा, जबकि मैं चाहता हूँ कि आप एवर फ्रेश रहें, लेकिन आप मानते ही नहीं। इमरान ने कहा, क्या नहीं मानता? मैं समझा नहीं तुम्हारी बात। सरदावर के लहजे में हैरत थी। एवर फ्रेश रहने का आपको मेरे लिए एक नई आंटी लानी पड़ेगी, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो दूसरी तरफ से सरदावर ने बेइख्तियार एक जोरदार कहका लगाया, शैतान आदमी, अब मेरी उम्र है ऐसे कामों के लिए। सरदावर ने हंसते हुए कहा, चलिए अपनी उम्र ही ले आइए, फिर तो आपको कोई एतराज़ ना होगा, इमरान ने कहा। तो सरदावर एक बार फिर हंस पड़ा। इसका मतलब है अब तुम्हारे लिए तलाश करनी पड़ेगी। अब तुमने इशारे देने शुरू कर दिए हैं। मैं तुम्हारे डैडी से बात करता हूँ, सरदावर ने कहा। अम्मा भी को आप नहीं जानते, वो बड़ी जलाली खातून है, डैडी को छुपने की जगह भी नहीं मिलनी, इमरान ने जवाब दिया। क्या मतलब, ये क्या बात हुई? सरदावर ने एक बार फिर हैरान होकर पूछा। जाहिर है जब डैडी अम्मा बी पर सौकन लाने का सोचेंगे तो फिर यही होगा, इसलिए प्लीज़ आप डैडी से ऐसी कोई बात ना करें। वैसे अगर अम्मा बी को मालूम हो गया कि ये मशवरा आपने डैडी को दिया है तो फिर लेबॉर्ट्री के हिफाजती इक़दामात भी आपको अम्मा बी के जलाल से ना बचा सकेंगे, इमरान ने जवाब दिया। तो सरदावर काफ़ी देर तक हंसते रहे। तुम वाकई ही शैतान हो, कहाँ की बात कहाँ ले जाते हो। बहरहाल मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर समृति और डॉक्टर शूना अपलैंड में नहीं हैं, बल्कि स्वीडन में अक़वाम मुत्तहिदा के तहत इस बार सेला रेस पर काम कर रहे हैं, सरदावर ने कहा। तो इमरान उनकी बात सुनकर बेइख्तियार चौंक पड़ा। क्या आप कन्फर्म हैं? इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। हाँ, मैंने खुद फ़ोन पर उनसे बात की है। मुझे याद नहीं था, जब फ़ोन पर बातचीत हुई तो मुझे याद आ गया कि ये दोनों तो मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ते रहे हैं और हमने इस दौर की यादें भी दोहराई हैं, इसलिए मैं हतमी तौर पर बात कर रहा हूँ, सरदावर ने कहा। तो फिर अपलैंड में काम करने वाले डॉक्टर शोनार्ड और डॉक्टर समृति कौन है? और वो काम भी वो मार्सिला रेस पर ही कर रहे हैं, इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। डॉक्टर शोनार्ड और डॉक्टर समृति दोनों से मेरी जो तफसीली बात हुई है उसमें मार्सिला रेस के बारे में भी गुफ्तगू हुई है, और मैं इस गुफ्तगू से इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अपलैंड तो एक तरफ, पाकिस्तान और काफरिस्तान में भी ऐसी लेबॉर्ट्रियाँ और मशीनरी मौजूद नहीं है जहां ऐसी जदीद तरीन रिसर्च हो सके। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस फार्मूले को अमन की खातिर अपने लिए मखसूस कर रखा है और अक़वाम मुत्तहिदा के तहत इस पर काम हो रहा है। अलबत्ता क्रीमिया, रूसिया और शुगरान और दूसरी सुपर पावर्स की लेबॉर्ट्रियों में इस पर काम हो सकता है, काफरिस्तान और अपलैंड में हरगिज़ नहीं हो सकता, सरदावर ने कहा। ओके ठीक है, आपने अच्छा किया कि इस बात को कन्फर्म कर दिया। अब मैं मज़ीद इंक्वायरी खुद ही कर लूँगा, खुदा हाफिज़, इमरान ने रसीवर रख दिया। उसी लम्हे ब्लैक ज़ीरो किचन से हाथ में चाय की 2 प्यालियाँ उठाए अंदर दाखिल हुआ। उसने एक प्याली इमरान के सामने रखी और दूसरी लेकर वो अपनी कुर्सी पर बैठ गया। क्या कोई केस शुरू हो गया है? ब्लैक ज़ीरो ने कहा। शुरू होते होते रह गया है, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और फिर तौसीफ की काल से लेकर सरदावर की रिपोर्ट तक सारी बातें उसने तफसील से बता दी। ये तो वाकई ही अजीब सी बात लगती है कि बैक वक्त 2 जगहों पर 2 आदमी काम कर रहे हैं, ब्लैक ज़ीरो ने हैरत भरे लहजे में कहा। इस बात से पता चलता है कि मामलात खासा पेचीदा हैं, इमरान ने कहा और चाय की चुस्कियां लेना लगा। इसकी पेशानी पर शिकनें उभर आई थी। चाय पीने के बाद उसने ट्रांसमीटर को अपनी तरफ खिसकाया और इस पर तौसीफ की मखसूस फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करनी शुरू कर दी। हेलो इमरान, कॉलिंग ओवर। इमरान ने फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करने के बाद ट्रांसमीटर ऑन किया और बार बार कॉल देना शुरू कर दी। यस तौसीफ, अटेंडिंग यू, ओवर। थोड़ी देर बाद तौसीफ की आवाज़ सुनाई दी। तौसीफ, मज़ीद क्या रिपोर्ट है इस डॉक्टर शोनार्ड और डॉक्टर समृति के मुतल्लिक, ओवर, इमरान ने कहा। इमरान साहब, मैं अभी इस लेबॉर्ट्री के महल्ले वकू का खोज लगा रहा हूँ। जैसे ही उसका खोज लगा है वहाँ जाकर खुद चेकिंग करूँगा, फिर ही कोई बात सामने आ सकती है। लेकिन ये लेबॉर्ट्री इस कदर खुफिया तौर पर बनाई जा रही है कि फौरी तौर पर इस बारे में कुछ मालूम नहीं हो रहा, ओवर, तौसीफ ने जवाब देते हुए कहा। वो डॉक्टर शोनार्ड तो शोबे का सरबराह है, वो तो दारुल हुकूमत में ही किसी ऑफिस में बैठता होगा, ओवर, इमरान ने कहा। जी नहीं, उसका कोई ऑफिस नहीं बनाया गया, मैंने सारी मालूमात हासिल कर ली हैं, ओवर, तौसीफ ने जवाब दिया। मैंने अपने तौर पर जो मालूमात हासिल की हैं उनके मुताबिक
डॉक्टर शोनार्ड और डॉक्टर समृति दोनों अक़वाम मुत्तहिदा के तहत बनाई गई लेबॉर्ट्री में स्वीडन में काम कर रहे हैं और वहीं मौजूद हैं। ओवर। इमरान ने कहा, मैं क्या कह सकता हूँ इमरान साहब, मुझे तो जो मालूमात मिली वो मैंने आप तक पहुँचा दी, इसलिए तो मैंने चीफ को रिपोर्ट नहीं दी थी कि पहले कन्फर्म हो जाए। बहरहाल अब मैं इस मिशन को छोड़ता तो नहीं, असल हकीकत मालूम करके ही दम लूँगा। ओवर। तौसीफ ने जवाब देते हुए कहा, मैंने तुम्हारी रिपोर्ट चीफ तक पहुंचा दी है और चीफ ने इसका सख्त नोटिस लिया है। हो सकता है कि वो इस सिलसिले में टीम अपलैंड भेजने का फैसला करें, इसलिए तुम जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके किसी न किसी नतीजे तक पहुंचो। ओवर। इमरान ने कहा, ठीक है, मैं अपने काम की रफ्तार मज़ीद तेज़ कर देता हूँ। ओवर। तौसीफ ने जवाब दिया और इमरान ने ओवर एंड ऑल कहकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। तो आपका प्रोग्राम वहाँ जाने का बन गया है? ब्लैक ज़ीरो ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तक कोई बात हतमी तौर पर सामने ना आ जाए इस वक्त तक वहीं जाना बेकार है। मैं तो सिर्फ तौसीफ को जल्द से जल्द काम निपटाने के लिए धमकी दी थी। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर उससे पहले कि मज़ीद कोई बात होती अचानक फ़ोन की घंटी बज उठी। इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। X2। इमरान ने मखसूस लहजे में कहा, जनाब, मैं राना हाउस से जोसेफ हो रहा हूँ। बॉस फ्लैट पर मौजूद नहीं है, जबकि जवाना ने इनसे कोई इंतहाई ज़रूरी बात करनी है। इसलिए अगर इमरान साहब की कॉल आपके पास आए तो बराह मेहरबानी बॉस को कह दें कि वो या तो राना हाउस आ जाएं या जवाना से रब्ता कायम कर ले। दूसरी तरफ से जोसेफ की इंतहाई मौतबाना आवाज़ सुनाई दी। ठीक है, अगर इमरान की कॉल आई तो मैं उससे कह दूंगा। इमरान ने उसी तरह सर्द लहजे में कहा और रिसीवर रख दिया। ये क्या बात हुई? जोसेफ ने ये तो पूछा ही नहीं कि आप यहाँ मौजूद हैं या नहीं। ब्लैक ज़ीरो ने हैरत भरे लहजे में कहा, जोसेफ इंतहाई ज़हीन आदमी है। इसने जानबूझकर ये बात नहीं की क्योंकि वो जवाना पर यह जाहिर नहीं करना चाहता कि मुझसे दानिश मंजिल के फ़ोन पर भी बात हो सकती है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और ब्लैक ज़ीरो ने असबात में सर हिला दिया। इमरान साहब, अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपलैंड जाकर इस बारे में अपनी तौर पर मालूमात हासिल करूं। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद ब्लैक ज़ीरो ने कहा, क्या वहां अकेले जाओगे? इमरान ने मुस्कुराते हुए पूछा। जाहिर है अब मैं टीम तो साथ नहीं ले सकता। ब्लैक ज़ीरो ने जवाब दिया, तुम जोसेफ को साथ ले जा सकते हो, लेकिन इस सूरत में तौसीफ को क्या बताया जाए क्योंकि वो जोसेफ के बारे में बहरहाल जानता है। इमरान ने सोचने के से अंदाज में कहा, जोसेफ को साथ ले जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला ही तौसीफ के साथ मिलकर काम कर लूँगा। ब्लैक ज़ीरो ने कहा तो इमरान भी इख्तियार मुस्कुरा दिया। वो ब्लैक ज़ीरो की बेचैनी से पूरी तरह लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा था। ठीक है, फिर मैं तौसीफ को बतौर चीफ कह देता हूँ कि मैं एक स्पेशल एजेंट भेज रहा हूँ क्योंकि सीक्रेट सर्विस यहाँ मसरूफ़ हो गई है। तुम मेकअप कर लेना, तुम्हारा नाम यही ताहिर ही ठीक रहेगा। इमरान ने कहा तो ब्लैक ज़ीरो ने असबात में सर हिला दिया। उसके चेहरे पर यकलख्त ऐसे मुसरत भरे तासुरात उभर आए जैसे किसी कैदी को अचानक रिहाई की खबर सुना दी जाए। इमरान ने ट्रांसमीटर अपनी तरफ खिसकाया और उसका बटन ऑन कर दिया। क्योंकि इस बार पहले से ही तौसीफ की फ्रिक्वेंसी मौजूद थी, इसलिए उसे दोबारा फ्रिक्वेंसी एडजस्ट करने की ज़रूरत ना थी। हेलो चीफ, कॉलिंग यू। ओवर। इमरान ने इस बार X2 के मखसूस लहजे में कॉल देते हुए कहा, यस सर, तौसीफ बोल रहा हूँ। ओवर। थोड़ी देर बाद तौसीफ की इंतहाई मौतबाना आवाज़ सुनाई दी। मुझे इमरान ने तफसीली रिपोर्ट दे दी है। ये अहम मसला है और सीक्रेट सर्विस चूँकि यहाँ एक केस में मसरूफ़ है, इसलिए मैं तुम्हारे पास सीक्रेट सर्विस का एक स्पेशल एजेंट ताहिर भेज रहा हूँ। तुम मुझसे खुद ही मिल लेना, कोड X2 ही होगा। तुमने उसके साथ इस लेबॉर्ट्री और इन दोनों डॉक्टरों के बारे में तफसीलात हासिल करनी है। और सुनो, स्पेशल एजेंट ताहिर वहाँ तुम्हें लीड करेगा। ओवर। इमरान ने X2 के लहजे में कहा, यस सर। ओवर। दूसरी तरफ से तौसीफ ने इस तरह मौतबाना लहजे में कहा और इमरान ने ओवर एंड ऑल कहकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। लो, अब तो तुम्हारी तैयारी करके वहाँ पहुँच जाओ। तौसीफ की रहायशगाह का तो तुम्हें इल्म है, बाकी तुम उससे खुद ही डील कर लेना। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया इमरान साहब, आपने मुझे काम करने की इजाज़त देकर मेरे जिस्म पर नया खून दौड़ा दिया है। ब्लैक ज़ीरो ने मुस्कुराहट भरे लहजे में कहा, तौसीफ के मंगेतर शहला के बारे में तुम जानते ही हो, बस ख्याल रखना वो बड़ी नाजुक मिजाज की लड़की है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो ब्लैक ज़ीरो भी इख्तियार हंस पड़ा। आप फिक्र ना करें, इसकी नाजुक मिजाजी में कोई फ़र्क ना आएगा। ब्लैक ज़ीरो ने हंसते हुए कहा और इमरान भी इख्तियार हंस पड़ दिया। फिर उसने फ़ोन का रिसीवर उठाया और राना हाउस के नंबर डायल करने शुरू कर दिए। राना हाउस। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से जोसेफ की आवाज़ सुनाई दी, क्योंकि राना हाउस का फ़ोन हमेशा जोसेफ ही अटेंड करता था। इमरान बोल रहा हूँ, तुमने चीफ को फ़ोन किया था कि जवाना मुझसे कोई ज़रूरी बात करना चाहता है। इमरान ने कहा,
यस बॉस। दूसरी तरफ से जोसेफ ने जवाब दिया, क्या बात है, कोई अपनी डेल डोल की खातून तो नहीं मिल गई उसे? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, उसे ऑस्ट्रेलिया से उसके किसी दोस्त ने फ़ोन किया था, शायद इसी सिलसिले में वो आपसे बात करना चाहता है, मैं उससे बुलाता हूँ। जोसेफ ने जवाब दिया और फिर रिसीवर रखकर एक तरफ रख जाने की वजह से आवाज़ सुनाई दी, ऑस्ट्रेलिया से उसके दोस्त का फ़ोन। इमरान ने हैरत भरे लहजे में बड़बड़ाते हुए कहा। ब्लैक ज़ीरो के चेहरे पर भी हैरत के तासुरात उभर आए थे क्योंकि वो लाउडर पर भी बात सुन रहा था। हेलो मास्टर, चंद लम्हों बाद जवाना की आवाज़ सुनाई दी। ये बैठे बिठाए ऑस्ट्रेलिया में तुम्हारे दोस्त कहाँ से पैदा हो गए? और फिर उन्हें राना हाउस में तुम्हारी मौजूदगी और राना हाउस का नंबर भी मालूम हो गया। इमरान ने कहा, मास्टर, कुछ अर्सा पहले जब मैं एक्रीमिया गया था तो वहाँ एक पुराने दोस्त साइमन से एक होटल में इत्फाकन मुलाकात हो गई। साइमन ने बताया कि वो एक्रीमिया से ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो चुका है और उसने वहाँ स्टोन क्लब के नाम से क्लब खोल रखा है। मैंने उसे अपने मुतल्लिक बताया कि मैं पाकिस्तान में मुस्तकिल रह रहा हूँ और मैंने आपकी मुलाजमत कर ली है, तो उसने मुझे बताया कि वो आपको भी जानता है। इसने आपके मुतल्लिक भी ऐसी बातें की कि मुझे इसकी बात पर यकीन आ गया। फिर उसने मुझे ऑस्ट्रेलिया आने की दावत दी तो मुझे भी इखलाकन उसे पाकिस्तान आने की दावत देनी पड़ी और राब्ते के लिए राना हाउस का पता और फ़ोन नंबर मैंने उसे दे दिया। आज अचानक उसका ऑस्ट्रेलिया से फ़ोन आया तो उसने कहा है कि चूँकि वो आपसे राब्ता नहीं कर सकता इसलिए उसने मुझे फ़ोन किया है। उसके कहने के मुताबिक उसने एक होटल में इत्फाकन ज़ेर ज़मीन दुनिया के चंद अफराद की गुफ्तगू सुनी है जिसमें पाकिस्तान के एक साइंसदान डॉक्टर यूनुस का जिक्र आया। ये लोग डॉक्टर यूनुस को अगवा करने के बारे में ये बातचीत कर रहे थे और इस गुफ्तगू के सिलसिले में पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में किसी कॉलोनी ग्रीन टाउन का भी जिक्र आया था। उसने सोचा कि इस बारे में इत्तला करते, लेकिन साथ ही उसने दरख्वास्त भी की है कि उसका नाम सामने ना आए क्योंकि बकौल उसके वो अब ज़ेर ज़मीन दुनिया से राब्ते ख़त्म कर चुका है। अगर उस ग्रुप को इल्म हो गया तो इसके लिए मुश्किल हो जाएगी। जवाना ने तफसील बात करते हुए कहा, तुमने उससे फ़ोन नंबर लिया है उसका? इमरान ने पूछा। नहीं मास्टर, वैसे ऑस्ट्रेलिया के दारुल हुकूमत का रशिया में स्टोन क्लब के ज़रिए उससे रब्ता किया जा सकता है, जवाना ने जवाब देते हुए कहा। ओके, पहले मैं मालूम कर लूँ कि डॉक्टर यूनुस का क्या हदूद राबिया है, फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो इससे भी बात हो जाएगी, इमरान ने कहा। उसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया। ऑस्ट्रेलिया में ज़ेर ज़मीन दुनिया के अफराद डॉक्टर यूनुस को अगवा कराना चाहते हैं, ये क्या बात हुई? ब्लैक ज़ीरो ने हैरान होते हुए कहा, और हमें बाकायदा उसकी इतला दी जा रही है, इमरान ने कहा। उसके साथ ही उसने रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। PA2 सेक्रेटरी वज़ारत ख़ारजा। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से सर सुल्तान के PA की आवाज़ सुनाई दी। चीफ ऑफ सीक्रेट सर्विस सर सुल्तान से बात कराओ, इमरान ने X2 के मखसूस लहजे में कहा। यस सर, दूसरी तरफ से इंतहाई मौतबान लहजे में कहा गया। हेलो, सुल्तान बोल रहा हूँ जनाब। चंद लम्हों बाद सर सुल्तान की मौतबाना आवाज़ सुनाई दी। जाहिर है PA ने उन्हें बताया होगा कि कॉल X2 की तरफ से है। सर सुल्तान, मुझे अभी अभी ऑस्ट्रेलिया से इतला मिली है कि वहाँ का ज़ेर ज़मीन दुनिया का कोई ग्रुप पाकिस्तान के किसी डॉक्टर यूनुस को अगवा करना चाहता है। इस सिलसिले में यहाँ की कॉलोनी को ग्रीन टाउन का भी जिक्र किया गया है। हो सकता है कि इस डॉक्टर यूनुस की निगरानी की जा रही हो और ये भी हो सकता है कि वज़ारत साइंस में भी कोई मुखबरी हो रही हो। इसलिए आप अपने तौर पर सीक्रेट वज़ारत साइंस डॉक्टर बशारत से बात करके उनसे डॉक्टर यूनुस के बारे में तफसीली मालूमात हासिल करें, ख़ास तौर पर ग्रीन टाउन के हवाले से भी। इमरान आपसे ये मालूमात हासिल कर लेगा, इमरान ने X2 के लहजे में बात करते हुए कहा। यस सर, दूसरी तरफ से सर सुल्तान ने इसी तरह मौतबाना लहजे में जवाब दिया तो इमरान ने खामोशी से रिसीवर रख दिया। अब इन हालात में मेरे लिए क्या हुक्म है? ब्लैक ज़ीरो ने कहा। कैसे हालात? इमरान ने चौंक कर पूछा। यही डॉक्टर यूनुस के सिलसिले में जो नई बात सामने आई है, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। तुम अपलैंड जाओ, जो कुछ भी हुआ मैं खुद संभालूंगा। तुम जाते हुए दानिश मंजिल का निज़ाम ऑटोमेटिक कर जाना। मैं फ़िलहाल राना हाउस जा रहा हूँ, वहाँ से मैं खुद ही सर सुल्तान से राब्ता कायम करूँगा, इमरान ने कहा और कुर्सी से उठकर खड़ा हुआ। ब्लैक ज़ीरो असबात में सर हिलाते हुए एहतरामन उठा तो इमरान मुड़कर तेज़ तेज़ कदम उठाता बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाजे पर मखसूस अंदाज की दस्तक की आवाज़ सुनते ही कुर्सी पर बैठे हुए किंग ने चौंक कर सर उठाया और दरवाजे की तरफ देखने लगा।
share, press the bell icon